Starting with section D of the MCQs, which covers internal energy, enthalpy, work and heat in different type of physical processes. Now, सारे processes में ये thermodynamic parameters कैसे find out करना है, that we have already discussed and we know the formulas associated with them. So it's just that what formula and where to use it, that application you need to understand. So let's start with the first MCQ here. 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change in state. So the initial state given is 1 atmosphere, 3 liters, 200 Kelvin, to the final state with pressure 4 atmosphere, volume 5 liter, and temperature 250 Kelvin. So 1 mole of a non-ideal gas is undergoing a change of state, initial and final given, with the change in internal energy delta U equal to 40 liter atmosphere. So the change in enthalpy of the process in liter atmosphere unit is how much? For those who are given a try, can you tell me which formula to be applied over here? How do we get enthalpy, delta H? Yes. Delta U plus delta P. Correct. The enthalpy is given as internal energy plus the pressure volume work. So when you talk about the change, delta H was equal to delta U plus delta of PV. अब मैंने यहाँ पर बताया था 3 अलग ways में ये formula use कर सकते हो. If pressure volume both are changing, take delta PV which is P2 V2 minus P1 V1. Pressure constant है, volume change हो रहा है, P delta V ले लो. Volume constant है, pressure change हो रहा है, V delta P ले लो. ठीक है, तो ये 3 अलग फॉर्मूलाज. और अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो इंस्टेड ऑफ डेल्टा पीवी टेक इट एज फॉर अ केमिकल रिएक्शन. व्हाट वाज द फोर्थ फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच? Delta NRT. डेल्टा NGRT. जी हमेशा बोलो ताकि याद रहे कि सिर्फ गैसियस मोल्स का डिफरेंस लेना है. ठीक है, so 4 formulas of enthalpy के related you should be able to remember what to apply and which to apply, that is based on the data given. So based on the data we are going to take the delta PV over here, which is in turn equal to P2 V2 minus P1 V1. So delta U is already given as 40 liter atmosphere. P2 into V2 from the final state is 24 times 5. And P1 V1 from the initial state is 1 times 3, that is 3. And liter atmosphere ka hi units hai, so no conversions required. And hence it's simply 40 plus 17, which is equal to 57 liter atmosphere. That's the enthalpy for this particular process. Understood? Yes, sir. ठीक है, तो simple question. But remember that delta H is equal to delta U plus delta PV के रिलेशन में 4 अलग फॉर्मूलाज हैं. कौन सा कब यूज करना है वो डेटा से क्लियर हो जाएगा and you should be able to easily understand that. Next, a certain amount of zinc is dissolved in HCl at 25 degrees Celsius in an open vessel. The type of process and the work done by the system respectively would be. Yes. Isobaric and negative. Isobaric and negative. अब इसको समझने के लिए we can first of all understand that the reaction is taking place in an open vessel. So all the chemical reactions, मैंने बोला था, when you carry out in the laboratory in the open flask, open container, they are always carried out at standard pressure of 1 atm, which is isobaric. ठीक है, तो reactions in an open container isobaric होते हैं. दूसरा यहाँ पर बोला है कि work is done by the system, मतलब this clearly gives you the understanding that it is work of
Work of what? Expansion. By the system on the surrounding is expansion only ना, and work of expansion हमेशा negative होता है. ये तो एक चीज हो गया. From the statement itself you get the answer isobaric with negative. ठीक है. दूसरी बात we can also understand through the reaction. Now reaction clear है. When zinc is dissolved in HCl, it's a famous metal displacement reaction wherein zinc will displace hydrogen forming zinc chloride and hydrogen gas would be liberated. Okay, so now the gas which is formed during the reaction will start expanding the gas, and because of that it will try to do the work against the surroundings. Okay, that is the reason isobaric negative combination is correct. Again, 2 moles of an ideal gas expand spontaneously into a vacuum. The work done is 0 because the P external is 0 in vacuum. There is no opposing force. इसलिए काम कुछ होगा ही नहीं. The work will be equal to 0. Next, 2 moles of helium gas undergo a reversible cyclic process as shown in the figure. Assuming gas to be ideal, what is the work for the process C to D? So just यहाँ पर C to D के path में आपको work find out करना है. What is the hint? Ideal gas. Ideal gas, ठीक है. How that is the hint? So you use the equation and get a Which PV equation? relation. Okay. और कुछ observation? Clockwise. Clockwise है. And clockwise work is always Negative. clockwise work is always work of expansion and it is negative. And from the graph, can you observe anything along the line CD? अरे भाई Temperature ग्राफ constant. में हाँ मतलब क्लियर हिंट है. आइडियल गैस ठीक है, मोल्स 2 है, लेकिन इससे ये तो क्लियर है ना दैट दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हिच इज गोइंग फ्रॉम द पाथ C to D. एंड और एक चीज यहाँ पर रिवर्सिबल है. मतलब कैन आई से द लाइन CD इंडिकेट्स एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So do we know the work done in this process? Do we know any formula isothermal reversible process का work done calculate करने के लिए? फॉर्मूला देखना पड़ता है. लॉग वाला कि बिना लॉग वाला? चलो उतना बता दो. अरे we have done 2 derivations only for work done. For isothermal irreversible that was against a constant pressure, उससे clearly formula simple वाला था minus P external delta V. And if the work done is in a reversible isothermal process, then it is maximum wala work, which is given by minus 2.303 nRT into log to the base 10 V2 by V1. हाँ कि नहीं? So, तो आपको स्टेटमेंट के थ्रू क्लियर होना चाहिए. पहला हिंट रिवर्सिबल दिया हुआ है, दूसरा हिंट टेम्परेचर कांस्टेंट ग्राफिकली समझता है. कंबाइन करो, समझ में आया कि नहीं? आइसोथर्मल रिवर्सिबल है. A work done in the reversible process is already derived. Minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. या अगर प्रेशर के चेंजेस दिए होंगे तो P1 by P2. राइट. अब ऑप्शन में ln के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब 2.303 को निकाल दो. This will become ln of V2 by V1 या P1 by P2.
अब जस्ट सब्स्टिट्यूट, माइनस मोल्स कितना है, 2 मोल्स दिया है हीलियम गैस का, आर को ऐसे ही रखो बिकॉज ऑप्शन में भी ऐसे ही रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 400 केल्विन into ln of, now from C to D the pressure का change is given 2 to 1 and initial upon final ही होता है ना, तो 2 by 1 हो गया, मतलब your answer is -800 R ln 2. समझा? Yes, sir. सिंपल है ना? नहीं है? So, क्वेश्चन से आपको समझना है, रिवर्सिबल दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंबाइन करो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन फाइंड करना है. दैट्स हाउ यू शुड विजुअलाइज द क्वेश्चन. ठीक है? पीवी इक्वल टू एनआरटी के रिलेशन से नहीं आ पाएगा बिकॉज यहाँ पर ये एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए दिया हुआ है. ठीक है? और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी नहीं है टू डू दोस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. फाइन. Yes, sir. Next, work for the following process A, B, C, D on a monoatomic gas is. So now let's trace the path first. A to B. Can you understand anything from here? isobaric. Isobaric. B to C ऑलरेडी दिया हुआ है और ये देना जरूरी है क्योंकि कर्व में आइसोथर्मल भी हो सकता है, ए डायबिटिक भी हो सकता है. दोनों दिए होंगे तो वी कैन विजुअलाइज, वी कैन अंडरस्टैंड, बट एक दिया है तो वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना. तो ऑलरेडी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए स्पेसिफाई किया है आइसोथर्मल. ठीक है? C to D पाथ कैसा है? Isobaric. Isobaric. आइसोबारिक. सो नाउ अगर ये पूरे पाथ में वर्क कैलकुलेट करना है ए बी सी डी में, तो कैन आई से इट इज वर्क ऑफ ए बी प्लस वर्क इन द बी सी प्लस द वर्क इन द सी डी. ऐड करो, यू गेट द आंसर. नाउ केस 1, ए बी पाथ आइसोबारिक against the constant pressure, which formula do we apply? Minus P external at W. Minus P external, the pressure remaining constant is P naught into the change in volume. Now A to B में the volume changes 2V naught minus V naught, है ना? minus P naught V naught आएगा. हो गया A B path. अब B to C. Now from the graph tell me B to C isothermal तो है, is it reversible or irreversible? Reversible. How do you understand that? Gradual change in pressure. Sorry? There's a gradual change in pressure. ग्रेजुअल चेंज इन प्रेशर. और एक चीज जो मैंने बताया था करेक्ट है, ग्रेजुअल चेंज इन प्रेशर इज करेक्ट. और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के ग्राफ में क्या फर्क आता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल का ग्राफ इज ऑलवेज अ curve. Had it been irreversible, it would have been a constant pressure and the change in volume. Line आता, rectangular area आता. हमेशा याद रखो, कर्व दिया है तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल वाला है. देखो ये दिया नहीं है बट वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज रिवर्सिबल में ही कर्व आता है एंड वर्क डन मैक्सिमम होता है. इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट एवरी पॉइंट. दो बिल्डिंग के ब्रिज में ब्रिज लगाया है तो स्टेप वाइज बेबी स्टेप करके जा सकता है, लेकिन ब्रिज ना हो तो बीच में से हम उसको बोल नहीं सकते रुक भाई, टपक जाएगा. दैट इज हाउ आई हैड एक्सप्लेन्ड. याद रखना ये छोटी छोटी चीज है. So this is how you can understand. अब वापस यहाँ पर ln के फॉर्म में अगर कंसिडर करें तो इट विल बी माइनस n. मोल्स मुझे पता नहीं है, r t टेम्परेचर भी नहीं दिया है, अरे बाप रे, ln ऑफ. अब यहाँ पर देयर इज अ प्रेशर p नॉट
and the final pressure is not actually given, ये क्वेश्चन में दिया है, ये P0/2 होना चाहिए। वैसे ये कैलकुलेट कर सकते हो पीवी के रिलेशन से, है ना, आइसोथर्मल ही है, ये P0/2 आएगा। तो ln ऑफ इनिशियल पॉइंट बी पे प्रेशर इज P1, दैट इज P0, एंड फाइनल प्रेशर इज P0/2। P0 छू, आपको बचेगा ln ऑफ 2। ठीक है, एंड देन वर्क इन द CD वाला पाथ इज अगेन माइनस P एक्सटर्नल आपका P0/2 है, इनटू वॉल्यूम का चेंज। व्हाट इज द वॉल्यूम का चेंज फ्रॉम C टू D? -2. Minus साइंस का खास ध्यान रखना, साइन में गड़बड़ तो थर्मोडायनामिक्स में गेम ओवर। आप मैग्नीट्यूड तक पहुंच ही जाओगे, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। साइंस विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट लुक एट द साइंस केयरफुली। ठीक है, अब ये हो गया प्लस P0 V0 और ये माइनस है, तो ये दोनों पार्ट तो आपका कैंसिल हो गया। आई कैन से AB और CD में द वर्क डन वाज इक्वल एंड ऑपोजिट, इसीलिए वो 0 हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास बचा माइनस nRT ln2। अब ऐसे फॉर्म में तो ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो आई नीड टू गेट द रिलेशन ऑफ PV थ्रू nRT। कैसे लेके आएंगे? हाँ, so what is the PV pressure volume values at the point B? 2 P0 V0। और अगर पॉइंट C पे लो तो भी वही आना चाहिए ना, बिकॉज टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज P0/2 इंटू 4V0, जो कि 2 P0 V0 देगा आइदर वेज। यानी nRT की जगह आई कैन राइट -2 P0 V0 ln ऑफ 2, and that's the work done along the ABCD path। आ रहा है समझ में? yes, sir. ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ग्राफिकली वर्क डन कैसे ढूंढना है, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो। अगर आइसोथर्मल है तो उसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के रिलेटेड चेक करो, एंड देन यूज द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है? 0. 0। ठीक है, तो तीनों प्रोसेसेस की बात हमने कर ली, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक। अब बचा ए डायबिटिक, उसके रिलेटेड आगे 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, that would actually cover your A diabetic type numericals। Coming to that, 1 mole of ammonia gas at 27 degrees Celsius is expanded in reversible adiabatic condition to make volume 8 times. Gamma given is 1.33, final temperature and work done respectively are। एक बार फिर से, I'm just reading and writing what is given। 1 mole of ammonia, N is given, at 27 degrees Celsius, T is given, is expanded, इससे भी कुछ मिल सकता है हमें, in reversible adiabatic condition to make the volume 8 times। मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो 8 times of इनिशियल है। गामा की वैल्यू इज गिवन, फाइनल टेम्परेचर आपको ढूंढना है, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड द T2 वाला टेम्परेचर एंड द वर्क डन। सो आई विल टेक द इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एज T1। तो दिस इज व्हाट इज गिवन। अब एडायाबेटिक रिवर्सिबल कंडीशन में इज देयर एनी रिलेशन व्हिच इज नोन टू यू? यूजिंग गामा कुछ याद आता है? ए डायबिटिक, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। ए डायबिटिक का कोई भी रिलेशन आपको याद है क्या? वो बोलो।
NR is delta T upon gamma. NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1 वो वर्क डन का फॉर्मूला था. इनफैक्ट वर्क डन in a diabetic, whether reversible or irreversible, the formula was Same. but the magnitude never ever becomes the same because final path हमेशा अलग होगा, final point हमेशा अलग होगा. एक बैंगलोर दूसरा चेन्नई है ना. सो वर्क डन का फॉर्मूला है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1. इसी को हमने लिखा था NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1. उसी R अपॉन गामा -1 को हम लिखते हैं NCV डेल्टा टी. ये तो वर्क डन के फॉर्मूलाज हो गए. और कोई रिलेशन ए डायबिटिक? और कुछ भी याद नहीं आ रहा है? सबसे बेसिक P रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उसी को हमने दो अलग फॉर्म्स में लिखा था, दो अलग फॉर्म्स में लिखा था. तो सबसे बेसिक ए डायबिटिक का क्वेश्चन है, मतलब PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट तो दिमाग में छप जाना चाहिए. अब अगर आप डेटा को देखोगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन है और वॉल्यूम का वेरिएशन है, मतलब इसमें T और V का रिलेशन चाहिए. तो मैंने इसके अलग अलग फॉर्म्स बताए थे ना कि PV इक्वल टू nRT होता है, तो ए डायबिटिक में N और R कांस्टेंट होने पर प्रेशर को T बाई V से रिलेट कर सकते हैं. यहां पर अगर मैं T बाई V रिलेट कर दूं तो TV रेज़ टू गामा -1 कांस्टेंट का रिलेशन आया था कि नहीं एवरीवन? ठीक है, तो थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूं, क्या आपको सोचना पड़ेगा. तो अब यहाँ पर T1 इंटू V1 रेज़ टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 गामा -1. आपको वॉल्यूम्स पता है, गामा पता है, इनिशियल पता है, टेम्परेचर, फाइनल मिल जाएगा ना. आ गया फॉर्मूला. सो इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन इंटू V1 ऐसे ही रखते हैं, गामा -1 इज 0.33 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर इंटू V2 8V1 है एंड रेज़ टू 0.33. वॉल्यूम को एक साथ ले लो तो T2 आपका आ जाता है 300 टाइम्स 1/8 रेज़ टू 0.33, मतलब 1/3 यानी रूट ऑफ 8 इज क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. तो 300 बाई 2 150 केल्विन शुड बी द आंसर. तो दो ऑप्शन तो रूल्ड आउट है. समझा ये एवरीवन? Yes, sir. और एक चीज याद रहेगा, तो ए डायबिटिक में जब भी एक्सपांशन होता है इट ऑलवेज डिक्रीजेस द टेम्परेचर. AEDT दिया था. कैसे इसको सोचोगे? ए डायबिटिक है मतलब कंटेनर सील्ड है, इंसुलेटेड है. अब अगर उसमें एक्सपांशन हो रहा है मतलब द गैस इज एब्जॉर्बिंग द हीट. अब वो बाहर से तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता क्योंकि थर्मोस फ्लास्क में है ना, तो वो सिस्टम के अंदर से ही हीट ले लेगा. तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? है ना. तो हमेशा याद रखो ए डायबिटिक में एक्सपांशन हमेशा टेम्परेचर कम करता है, यानी 300 से कम ही आना चाहिए. अब चारों ऑप्शन में कम है तो वो तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर दो ऑप्शन में हायर टेम्परेचर दिया है तो सीधा आप दो ऑप्शन रूल आउट कर सकते हो, या तीन ऑप्शन में हायर एक में लोअर, मतलब दे आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग द कैलकुलेशन टू बी डन फ्रॉम योर साइड. इफ यू नो दैट ए डायबिटिक एक्सपांशन टेम्परेचर कम होता है, आंसर डायरेक्ट होगा. समझते हैं क्या? Yes, sir. चलो, तो हमने टेम्परेचर को ढूंढ लिया. अब सेकेंड पार्ट में वर्क डन. बोलो कौन सा फॉर्मूला लूं इन तीनों में से? ऑप्शन आपके पास. NR डेल्टा टी, क्योंकि N पता है, R तो ठीक है पता चल जाएगा, डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस मुझे पता है और गामा की वैल्यू पता है, बस यूज कर लो.
तो मोल 1 है, आर की वैल्यू, नाउ यू हैव टू फाइंड द वर्क डन इन कैलोरीज। आर जब भी सब्स्टिट्यूट करो ना, हाथ कांपने चाहिए। मतलब आपको सोचना है कि आर 0.082 लेना है, 8.314 लेना है, या 2 लेना है, एंड दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। नहीं तो हमारे दिमाग में हमेशा या तो लीटर एटमॉस्फेयर रहता है या तो 8.314 ऐसा यूनिट रहता है, बट कैलोरीज में तो आर को 2 लेना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूं, whenever you substitute R, think it twice before substituting, वरना कैलकुलेशन में छोटे सी चीज के लिए गड़बड़ हो जाएगा। सो ना 1 into कैलोरीज है तो R into टेम्परेचर का डिफरेंस 150 अपॉन गामा इज 1.33 माइनस 1.33, 1/3 ऊपर जाएगा 3 into 2 6 into 150 इज 900 कैलोरीज का वर्क डन आएगा। ऑप्शन 1 इज द आंसर। A superb question for a diabetic. समझा? Yes. चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है ए डायबिटिक का। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो पढ़ते पढ़ते लिखने का 1 मोल यानी n, CV का वैल्यू 5/2 R, 300 केल्विन T and 5 atmosphere P is expanded adiabatically to a final pressure of 2 atmosphere against a constant pressure of 2 atmosphere। अगर ये फाइनल प्रेशर है तो इसको P2 लेते हैं और ये P1 ले लिया जाए, एंड देन फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो फाइनल टेम्परेचर ये T2 है तो इनिशियल को मैं T1 ले लेता हूं। तो expanded adiabatically to a final pressure against a constant pressure of 2 atmosphere। ना यहाँ पर भी फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है, ए डायबिटिक एक्सपांशन है, मतलब कहना इसे मोर और लेस 16 जैसा ही क्वेश्चन है, बट एक पंगा है। जो फ्लो मैंने यहाँ पर अप्रोच की यूज किया है ना, वो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में नहीं कर सकता। कैन यू टेल मी व्हाई? Not given gamma। हाँ, गामा नहीं दिया है तो पीवी रेस टू गामा का रिलेशन यूज नहीं कर पाओगे ना। और आइडियल गैस दिया है, गैस भी पता नहीं है। अगर हाइड्रोजन गैस दिया होता तो हमें पता है डायटोमिक है, उसका गामा हम ले सकते हैं ना 1.4, कौन रोकेगा। बट गैस भी डिफाइन नहीं है, गामा स्पेसिफिकली नहीं दिया है, तो पीवी रेस टू गामा के थ्रू आप नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, प्रीवियस वाला रिवर्सिबल ए डायबिटिक दिया हुआ है, ये वाला कौन सा होगा, कुछ पता चलता है क्या? इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? देखो एक स्टेटमेंट में कुछ समझ में आ रहा है क्या? Pressure is constant। अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो जैसे हम आइसोथर्मल में भी डिफरेंशिएट करते हैं ना, वैसे इसके थ्रू भी कर सकते हैं ना। अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर मतलब दिस शुड बी व्हाट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? अरे इतना क्या सोचते हो? अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर वर्ड इंडिकेट्स व्हाट? Irreversible। हाँ, मतलब थ्रू द डेटा मुझे इतना तो पता चल गया कि ये ए डायबिटिक एक्सपांशन इरिवर्सिबल वाला केस है, जिसमें गामा नहीं है, तो मैं पीवी रेज़ टू गामा यूज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो अब इसका अप्रोच क्या होगा? हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ए डायबिटिक में क्यू 0 होने पर वी नो दैट दिस रिलेशन इज ट्रू, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू।
ना CV दिया हुआ है तो कुछ स्ट्राइक होता है। and CP. डेल्टा U इज N CP के CV। CV के लिए डेल्टा U होता है, CP के लिए डेल्टा H होता है। गड़बड़ मत करो, ये हमेशा याद रखो। QP is same as delta H and that is equal to NCP delta T। विसरू नका। Heat at constant volume is delta U equal to NCV delta T। दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज है बट बहुत इफेक्टिव। तो एडायाबेटिक में अगर डेल्टा U है तो उसकी जगह आई कैन राइट NCV डेल्टा T बराबर। Yes, sir. ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर के लिए आई कैन यूज माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। कांस्टेंट प्रेशर तो मुझे यहाँ पर दिया है, ये P एक्सटर्नल है, ये पता है। T2 माइनस T1 में T2 ढूंढना है, CV पता है, मोल्स पता है। अब पंगा वॉल्यूम का है, वॉल्यूम तो मुझे पता नहीं है बट ये आइडियल गैस है। कैन आई फाइंड आउट वॉल्यूम इफ द आइडियल गैस इज गिवन? कैसे कैसे कैसे? PV equal to NP. बस, तो अब सॉल्व हो गया। देखो माइनस P एक्सटर्नल की जगह P2 लिखो क्या? Yes, sir. फाइनल प्रेशर तक ही कांस्टेंट हो गया ना, मतलब P2 ही P एक्सटर्नल है। इनटू V2 की जगह nRT2 बाय P2 लिखूं एंड V1 की जगह nRT1 अपॉन P1। अब देखो एवरीथिंग इज देयर एक्सेप्ट T2 व्हिच वी हैव टू फाइंड। सब नोन है देखो। चलो मैं सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। सो मोल्स 1 है, CV 5/2 R है, उसको वैसे ही रखते हैं। T2 माइनस 300 लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में P2 छू, माइनस NRT मतलब 1 इंटू R इंटू T2, माइनस माइनस प्लस, प्लस NRT मतलब 1 इंटू R इंटू T1 300 है इंटू P2 बाई P1। अब P2 है 2 और P1 है 5, ये 5 60 टाइम 60 इंटू 2 120 R आ गया। अब एक ही अननोन है, जस्ट सॉल्व कर लो, आपको T2 मिलता है 248.5, जो कि इनिशियल से कम होना ही चाहिए क्योंकि अगेन ए डायबिटिक एक्सपांशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। AEDT याद रखो। समझा? Yes, sir. ये दो ही टाइप के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ए डायबिटिक में फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है, गामा दिया है तो PV रेस टू गामा से शुरू कर लो, गामा नहीं दिया है तो NCV डेल्टा T इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 प्रोवाइडेड इट इज इरिवर्सिबल। प्रोवाइडेड इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा ना। ओके, अब ये तीसरा क्वेश्चन ए डायबिटिक के लिए। In figure, A and B are two adiabatic curves for two different gases. Then A and B correspond to, A और B दोनों adiabatic curves है, तो A और B कौन सी gases हो सकती है? Can it be argon helium, helium हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हीलियम? अब ग्राफ के रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप स्लोप को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर आइसोथर्मल और ए डायबिटिक कर्व्स दोनों साथ में हो तो किसका स्लोप ज्यादा होता है? बोलो। Diabetic. और कितना टाइम ज्यादा होता है? Gamma delta.
ठीक है, ये मैंने आपको कहीं पे बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं? अब इस रिलेशन को मैं प्रूव करने वाला हूं. वी हैव टू प्रूव दैट व्हाई द स्लोप ऑफ ए डायबिटिक इज ग्रेटर गामा टाइम्स द आइसोथर्मल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीवी डायग्राम में अगर स्लोप निकालना है तो इट्स सिंपली डीपी बाई डीवी, डीवाई बाई डीएक्स. अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो ए डायबिटिक प्रोसेस में पीवी का रिलेशन इज गिवन एज पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. तो P कांस्टेंट इनटू गामा V रेज टू गामा माइनस 1 इनटू dV प्लस V रेज टू गामा कांस्टेंट इनटू dP, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा तो यहाँ 0. ओके ना, डिफरेंशिएशन किया है. अरे हाँ कि नहीं? Yes. तो फाइनली यहाँ पर dP बाई dV क्या आ रहा है देखो, माइनस P गामा V रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन V रेज टू गामा. तो ये कैंसल ऑफ होकर V रेज टू माइनस 1 यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा वॉल्यूम का, यानी P बाई V इंटू गामा आया. सो दिस इज द स्लोप ऑफ ए डायबिटिक, राइट? Yes, sir. ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका हो गया मैं क्या कर रहा हूं. नाउ इफ आई कंपेयर द स्लोप फॉर आइसोथर्मल, द रिलेशन आई यूज इज PV equal to constant. PV इक्वल टू कांस्टेंट. इसको डिफरेंशिएट कर लो तो PdV प्लस VdP इक्वल टू 0. Hence, dP by dV is equal to minus P by V. So this is your slope of isothermal process. अब compare कर लो. We have just proved that the adiabatic slope is always gamma times the slope of the isothermal. हो गया ये चीज clear? Yes, sir. तो अब if I keep the pressure and volume to be constant for the two gases, क्योंकि कुछ कंडीशन दिया नहीं है, तो आई कैन से दैट स्टैंडर्ड कंडीशन है P एंड V कांस्टेंट. ठीक है, तो उस केस में कैन आई से ग्राफिकली द स्लोप ऑफ ए डायबिटिक इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन गामा. सो ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि गामा ऑफ ए इज ग्रेटर देन गामा ऑफ बी. मतलब ए का एटॉमिसिटी कम होना चाहिए बी से, which can be the correct combination. Two is the obvious answer. ऑप्शन 1 और 3 तो वैसे ही रूल्ड आउट हो जाता है क्योंकि एटॉमिसिटी सेम है, या तो ऑप्शन 2 होता या तो ऑप्शन 4 है. 2 क्यों आया? क्योंकि ए का स्लोप ज्यादा स्टीपर है, इसका मतलब ए का गामा ज्यादा है, एटॉमिसिटी कम है, इसलिए हीलियम होगा और दूसरा हाइड्रोजन होगा. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये, प्लीज इसको वापस सॉल्व करो अगर आप लोग ने सॉल्व नहीं किया है तो. नेक्स्ट, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. If W1, W2 and W3 are magnitude of work done of an ideal gas in isothermal, adiabatic, isobaric, reversible expansion process, then from the same initial state to same final volume, the correct order of the work done will be. 3 प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल, एडायाबेटिक और आइसोबारिक. रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस है, इनिशियल स्टेज सेम है तीनों का और फाइनल वॉल्यूम सेम है तीनों का. तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? अब वर्क डन को कंपेयर करने का सिंपलेस्ट हिंट क्या है?
विदाउट डेटा अगर आपको कुछ वर्क डन चाहिए तो कैसे सोच सकते हो आप? डेटा तो है ही नहीं ना, वैल्यूज आर नॉट गिवन, कैसे सोचोगे? डेल्टा पीवी। डेल्टा मैथमेटिकल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ तो डेटा होना चाहिए ना, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, वो डेटा नहीं है। विदाउट डेटा आप वर्क डन कैसे ढूंढते हो? हमने सॉल्व किया ना क्वेश्चंस। How did we compare the work done for reversible versus irreversible expansion under isothermal? एरिया अंडर द कर्व। हाँ, हिंट समझा? सोचने का तरीका पूछ रहा हूं मैं आपको। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ, यानी ग्राफिकली यू कैन जस्ट कंपेयर दिस, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अगेन पीवी वाले डायग्राम को देखते हैं। रिवर्सिबल में आइसोथर्मल मतलब कर्व आना चाहिए, ये है मेरा इनिशियल पॉइंट है, सेम फॉर ऑल द प्रोसेस। Now, if I draw two curves like this, we know that ऊपर वाला is isothermal, नीचे वाला is adiabatic, right? And isobaric will be a parallel line to volume, बराबर की नहीं? Yes, sir. तो उन्होंने बोला है कि इनिशियल स्टेज सबका सेम है और फाइनल वॉल्यूम भी सबका सेम है। मान लो ये मेरा V2 है और ये मेरा V1 है। कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया मैंने। अब फंडा लगाओ, एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। आइसोबारिक आइसोथर्मल डेटा। क्लियर है ना? आइसोबारिक तो पूरा एरिया आएगा, आइसोथर्मल कर्व के नीचे का, ए डायबिटिक कर्व के नीचे का, तो ऑब्वियसली आइसोबारिक का वर्क डन इज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल। कौन सा है? 1, देन द ए डायबिटिक इज 2। अच्छा, आइसोकोरिक भी ले लेता हूं, चलो, क्या बोलोगे इसके लिए? 0। वर्क डन 0 होता है। तो मान लो चारों प्रोसेस कंपेयर करना है, तो ये हो गया इसका कंपैरिजन, राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Isochoric. Next, consider the cyclic process R to S to R as shown in the figure given. You are told that one of the path is adiabatic and the other one is isothermal. So which one of the following is are true? एक path adiabatic है, दूसरा isothermal है. Can you confirm from the graph which is isothermal and which is adiabatic? Process R to S is isothermal, S to R is adiabatic, R to S is adiabatic. Yes, such a graph is not possible. H2R is isothermal. S to R is adiabatic, Isothermal. isothermal. Why? ऊपर वाला कर्व isothermal, नीचे वाला adiabatic. That's what we understand from the graph, right? It's not possible. लेकिन ये ग्राफ में गड़बड़ है। हाँ आकृति, It's not possible. why? One is isothermal, one is diabetic. So starting from the same path, the point. So it can start from the same path, but it will never ever end And at the same. हाँ, आइसोथर्मल और ए डायबिटिक एक साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन दोनों का अलग ही होगा, कभी भी सेम नहीं होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। हमने यहाँ पर भी शुरू एक ही पॉइंट से किया था, खत्म इसको दो अलग अलग पॉइंट्स पे कर रहे हैं, देख रहे हो क्या?
ये कभी भी साइक्लिक में नहीं आ सकता, मतलब ऐसा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है व्हेनेवर आइसोथर्मल एडियाबेटिक इज इन कंसिडरेशन. You can start from the same path, but one has to reach Bangalore, other has to reach Chennai. याद रखना. Got it? Yes. Chalo, that completes the section D, a beautiful section for the isothermal and adiabatic work done calculations with enthalpy wala relation also discussed. ठीक है. अब E और F को अगर छोड़े तो G, H, I, J और K ये सारे सेक्शंस जो है ये सॉल्व कर सकते हो वंस आई कंप्लीट द सिनॉप्सिस ऑफ टुडे. ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में भी. तो लेट्स स्टार्ट द सिनॉप्सिस फॉर देम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज थर्मोकेमिस्ट्री. Now thermochemistry is that little branch of thermodynamics which deals with the chemical reactions and the thermodynamic parameter defined for it. यानी लेट्स से मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है A plus BB giving CC plus TD. For any chemical reaction, if I define the physical states and the reaction is balanced with the stoichiometric coefficient A, B, C, D and उसका enthalpy या कोई भी thermodynamic parameter defined है, जैसे यहाँ पर enthalpy of reaction, then such a reaction which is a balanced chemical reaction with the physical states mentioned and the thermodynamic parameter written alongside, then it's called as a thermochemical equation. ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो हर चीज को बोल सकते हैं, बट थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? बैलेंस्ड रिएक्शन विद फिजिकल स्टेट्स रिटन एंड द थर्मोडायनामिक पैरामीटर अलोंगसाइड. समझा? बोलो. Yes, sir. तो लेट्स से हेबर्स प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात करते हैं. तो इफ आई हैव हाफ मोल ऑफ N2 gaseous plus 3/2 moles of hydrogen gaseous, it will give 1 mole of ammonia gaseous. So this is the chemical reaction written. अगर इसको मुझे थर्मोकेमिकल इक्वेशन बनाना है तो इसके सामने इसका डेल्टा H नॉट लिखना पड़ेगा, और इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट एक्सोथर्मिक था, ये तो इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी है, -46.1 किलोजूल पर मोल का वैल्यू है इसका. दिस इज कॉल्ड अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन. इसमें फिजिकल स्टेट्स अगर मिसिंग है, करेक्ट बैलेंसिंग नहीं है या डेल्टा H नॉट नहीं है तो उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं बोला जाएगा. बस ठीक है. अब अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, wherein ammonia decomposes to give half mole of nitrogen and 3/2 moles of hydrogen, what is the enthalpy now? मतलब thermochemistry is all about the changes in the thermodynamic parameters when we do something to the reaction. तो केस 1 अगर रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो एंथैल्पी निगेट हो जाता है, मतलब now the exothermic becomes the endothermic reaction. If I multiply this reaction overall by 2, then क्या आएगा? अब डेल्टा H नॉट कितना? डबल हो जाएगा. मतलब अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करो बाय एनी फैक्टर, द डेल्टा H नॉट आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर. और अब यहाँ पर मोल का जो यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी था वो नहीं लिखूंगा ना, डबल कर दिया, मतलब ये 2 मोल्स के लिए हो गया, तो सिर्फ किलो जूल करके छोड़ देने का, पर मोल गलत हो जाएगा, राइट? इनफैक्ट 2 मोल और पर मोल कैंसिल ऑफ हो गया, बेसिकली टू से दैट ये मोल है और ये पर मोल है, मोल मोल कैंसिल. ओके.
Okay. Yes, sir. Now let's look at this question. Consider the chemical reaction given. OF2 का hydrolysis हो रहा है, giving you O2 and 2HF, delta H naught negative दिया है. What is delta H naught of the reaction if the equation is multiplied by 3? Yes. Thrice हो जाएगा, यानी 969 kilojoule. And if the direction of reaction is reversed, तो delta net H naught हो गया positive. बस यही है थर्मोकेमिस्ट्री. अब इसका एप्लीकेशन हम आगे धीरे धीरे देखेंगे. फाइन. So now coming to the standard enthalpies. तीन standard enthalpies define करने वाले हैं और उसके ऊपर the numericals are very important. Simple but important. ठीक है. हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एंथैल्पीज तो ऑलरेडी कल के सेशन में डिस्कस किए ही थे. नाउ यहाँ पर कुछ और रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज को डिफाइन कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation. It's indicated by delta H naught and F. Delta H enthalpy के लिए, not standard के लिए, F formation के लिए. ठीक है ना. अब मुझे बताओ, whenever I write standard enthalpy, two of the things are always important. The moment I say standard, बोलो क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी. For 1 mole analytic. Correct. Any standard enthalpy is always for 1 mole and under the standard conditions of temperature, pressure, STP. So standard enthalpy of formation, listen to the definition. Suno. Standard enthalpy of formation is defined as the enthalpy change associated with formation of 1 mole of the product. फॉर्म हो रहा है मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of the product formed from its constituent elements in the standard physical state under standard conditions of temperature and pressure. Product का 1 mole formed from the constituent elements in their standard states under STP condition is the standard enthalpy of formation. मतलब if I say कि I want the reaction to be written for delta HF naught of water, इसका मतलब I have to write the reaction for formation of water. So how many moles of water should be formed standard condition में? Hello? 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 Can you all hear me? Am I audible? Yes. Yes, sir. तो अगर मैंने कहीं पे लिखा डेल्टा एच एफ नॉट वाटर का मतलब यहाँ पर 1 mole of the water in its standard state यानी liquid is to be formed from its constituent elements hydrogen and oxygen in their standard state. Hydrogen exists as a diatomic gas, even oxygen diatomic gas, and 1 mole water के लिए H2 plus half O2 होना चाहिए. Now this is the thermochemical equation for formation of water. समझा? समझा? अरे हेलो. Sir. Sir. अच्छा, अब आपसे मैं पूछता हूँ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. What will be the reaction to be written? जय. स्टेप वाइज देखो.
formation of H2SO4. So where will be H2SO4 written? Right. Right. कितना moles? 1. तो बड़ा सा 1 बार बार लिख रहा हूं, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, इसलिए 1 mole of the sulfuric acid in its standard state is to be formed from its constituent elements. What are the constituent elements? Hydrogen, sulfur, oxygen. So, अब इसके स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स हाइड्रोजन, सल्फर सॉलिड एंड ऑक्सीजन O2 गैसियस। और अब इसको बैलेंस कर लो, तो H2 प्लस S प्लस 2O2। समझा? sourdough, हाँ बोलो ना। which allotropic form of sulfur do we have? सुपर क्वेश्चन। नाउ किसी भी एलिमेंट के अगर अलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, देन थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स को हम कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे कार्बन हैज मेनी अलोट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, लैम्प ब्लैक एंड मेनी एल्स। उसमें से थर्मोडायनामिकली जो स्टेबल फॉर्म है ना कार्बन का, दैट इज ग्रेफाइट। मतलब एनी टाइम थर्मोडायनामिक्स में कहीं पे भी स्टैंडर्ड रिएक्शन की बात आए और हम कार्बन लिख रहे हैं, वो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म होता है। इट्स नीदर डायमंड, नीदर फुलरीन, इट्स ऑलवेज ग्रेफाइट। ठीक है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंटेंट। अब आपके लोगों दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि कार्बन के, ग्रेफाइट और डायमंड में स्ट्रक्चरली स्टेबल कौन सा है? Diamond. Undoubtedly, diamond is very strong because of CC covalent bonds and the tetrahedral covalent network. But हम structurally stability की बात नहीं कर रहे हैं, हम energy wise stability की बात कर रहे हैं। तो जब ये ट्रांजिशन एंथैल्पी देखते हैं ना डायमंड टू ग्रेफाइट, तो उसमें एनर्जी इज रिलीज्ड, डेल्टा एच नेगेटिव आता है। इसका मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। उस केस में ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली स्टेबल पाया गया है। सो इट्स एज पर द एनर्जी कंटेंट। समझा? Yes, sir. देखो लास्ट सेशन में ना हमने ये देखा था ग्रेफाइट वर्सेस डायमंड, ट्रांजिशन एंथैल्पी बोलते हैं। अच्छा बताओ, अगर ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली स्टेबल है तो डेल्टा एच ट्रांजिशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? Positive. ये एंडो होगा। रिवर्स में एक्सो आएगा, तभी ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल कहलाएगा ना। Yes, sir. वैसे ही सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म में इसका डेल्टा एच ट्रांजिशन भी पॉजिटिव आता है, यानी रोम्बिक वाला ज्यादा स्टेबल है। यानी सल्फर कभी भी थर्मोडायनामिक्स में बात आए तो रोम्बिक का बात आएगा। मोनोक्लिनिक, प्रिज्मेटिक, मिल्क ऑफ सल्फर, कोलोइडल सल्फर, बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, बट उनकी बात नहीं करते हैं। Coming back to the concept, if it is carbon, it's graphite. If it is sulfur, it's rhombic. फॉस्फोरस के लिए रेड फॉस्फोरस लिया जाता है बिकॉज उसके भी अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स थे। फाइन, तो ये जो सल्फर है ना, इसको मैं अब और स्पेसिफिक बना देता हूं, RH रोम्बिक वाला है। तो अब मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन अगर मैंने लिखने बोला तो हाउ वुड यू राइट द रिएक्शन? C graphite plus O2 is carbon dioxide. C graphite plus oxygen gaseous gives CO2। अच्छा, कहीं पे आना उन्होंने बोला C diamond plus O2 gaseous gives CO2। Does this represent the enthalpy of formation of carbon dioxide? हाँ या ना? O. The answer is no, no, no। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एकमात्र रिएक्शन होगा, ओनली वन, एंड दैट इज ग्रेफाइट एंड ऑक्सीजन गिविंग यू CO2। बाकी कोई रिएक्शन उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। तो अब मुझे लास्टली बताओ, बेंजीन के लिए हाउ डू यू राइट?
C6H6. Quick. 6 carbon. Hmm. 3H2 gas. Hmm. Benzene gas. बेंजीन गैस में नहीं होता है, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट बेंजीन का लिक्विड होता है। खैर ये सब तो चीजें आपको दी जाएगी क्वेश्चंस में, या फिर कुछ कुछ फिजिकल स्टेट आपको पता होने चाहिए, तो दैट विल कम विद प्रैक्टिस, डोंट वरी अबाउट दैट। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्लियर हो गया सबको? Yes. Yes. और वैसे ही दूसरा भी सिमिलर लाइंस पे है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो अगेन इसके लिए हमें 1 मोल का डेफिनेशन रिलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिस इज एब्रिविएटेड एज डेल्टा एच सी नॉट, सी फॉर कंबशन, है ना। और यहां पर भी स्टैंडर्ड मतलब 1 मोल किसका, रिएक्टेंट। जलेगा कौन, रिएक्टेंट। फॉर्मेशन में प्रोडक्ट बनेगा, कंबशन में रिएक्टेंट जलेगा। तो 1 मोल किसका होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे, इसलिए बड़ा सा 1 लिखूंगा इधर भी, ठीक है। तो मान लो मुझे लिखना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिएक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस, क्विकली। So, but how can you burn something at STP? This enthalpy is defined only under standard conditions. मतलब एक्चुअल रिएक्शन आप कोई और टेम्परेचर पर करो एंड देन थ्रू द रिलेशन of PV equal to nRT or maybe the real gas, you can come to this particular enthalpy. See, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा that ये जो reactions हम लिखते हैं ना, they may or may not be feasible. जरूरी नहीं जो भी मैं लिख रहा हूँ feasible होने चाहिए। इनफैक्ट कार्बन और हाइड्रोजन ऐड करके कहीं हाइड्रोकार्बन बनाया है क्या हमने कभी? No. नहीं। तो ये सारे रिएक्शंस खाली स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं। अब इसके एंथैल्पीज ढूंढने के लिए कोई और तरीका है, वो तरीके पे मैं आने वाला हूं। पहले मैं सिर्फ रिएक्शन लिखने का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। क्लियर? Yes. आप सुनो। तो कंबशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन कैसे लिखोगे बोलो? 1CH4 is carbon graphite plus 2H2. One methane gaseous will burn in oxygen excess to give CO2 and H2O. अब कोई भी कंबशन के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट जितना कार्बन उतना CO2 बनेगा और जितने हाइड्रोजन उससे आधा H2O बनेगा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन को ऐड करो तो 4, उसका आधा यहाँ पर बैलेंस। तो रिएक्टेंट का 1 मोल बर्न हो रहा है इन एक्सेस ऑक्सीजन गिविंग यू CO2 एंड H2O. दिस इज द कंबशन, स्टैंडर्ड कंबशन ऑफ मीथेन व्हिच इज रिटन. Now if I write delta H naught combustion of H2S, then 1 mole of H2S gaseous would be burnt in excess oxygen giving what? हाइड्रोजन जलेगा, पानी बनेगा, सल्फर जलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब ऑक्सीजन ऐड करो तो 3, आधा करो तो 3/2. दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ H2S. समझा एवरीवन? Yes. Yes, sir. And now third standard enthalpy is standard bond enthalpy, which is same as bond dissociation enthalpy, which is also same as enthalpy of atomization, है ना। BDE बोलो या BE बोलो या डेल्टा H A बोलो, तो इसको हम डेल्टा H BE लिखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के रिलेटेड, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। मुझे बताओ वाटर में कितने OH बॉन्ड्स हैं टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल कंप्लीटली? 4. हाउ मेनी? 4.
पानी में कितने बॉन्ड्स है तोड़ने के लिए, पूरा Hmm. मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए? 2 ही बॉन्ड्स है ना जय? Yes, yes. हाँ, मीथेन में 4 बॉन्ड्स होंगे CH वाले, ठीक है। तो अगर स्टेप वाइज में बॉन्ड्स को तोड़ो तो कभी भी स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी या एटॉमाइजेशन के लिए द मॉलिक्यूल शुड बी इन द गैसियस स्टेट, दैट इज द फर्स्ट थिंग. Then if I'm breaking one bond, I'll get hydrogen atom and OH group gaseous. Obviously unstable है. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप का एंथैल्पी मिलेगा डेल्टा H नॉट बॉन्ड एंथैल्पी. फिर अगर OH हाइड्रोक्सी एज अ न्यूट्रल ग्रुप को तोड़ू तो इसमें सेकेंड बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन गैसियस और O गैसियस आएगा. इसकी एनर्जी लगी डेल्टा H नॉट 2. ठीक है. तो अब पूरा मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा दैट विल बी ऑफ कोर्स एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपको यहाँ पर H2O गैसियस ब्रेक डाउन होने पर 2 हाइड्रोजन गैसियस एंड O गैसियस देगा. एवरीवन गेटिंग इट? So, पूरा मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए जो डेल्टा H नॉट लगेगा ना दैट विल बी H नॉट 1 प्लस H नॉट 2 बराबर. Yes. अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड एंथैल्पी फॉर ब्रेकिंग वन OH बॉन्ड, पानी का एक OH बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दोगे, व्हाट विल यू डू? Divide by 2. यू विल कंसिडर द एवरेज. पहले भी बताया मैंने, मतलब डेल्टा H1 नॉट प्लस डेल्टा H2 नॉट का एवरेज ले लोगे. यही अगर मीथेन में होता तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 आता, 1 2 3 4 एंथैल्पीज आती. एवरेज करने बोला तो 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 4 बराबर. तो फाइनली 3 एंथैल्पीज को हम डिफाइन कर चुके हैं, फॉर्मेशन, कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पी. अब इसको यूज कैसे करने वाले हैं उसके लिए नेक्स्ट पार्ट, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. इफ यू रिकलेक्ट, मैंने हेसेस लॉ पहले आपको बताया है. कहां पर बताया है? Lattice and लैटाइस, सॉल्यूशन और हाइड्रेशन का रिलेशन बताने के टाइम पे. गुड इनफ. तो उसका फंडा क्या था? तो मैं यहाँ पर एक नया एग्जांपल लेता हूँ. कार्बन ग्रेफाइट को अगर मैं बर्न करूँ एक्सेस ऑक्सीजन में तो CO2 मिलेगा. पूरा बर्न कर दिया. बट इसको मैं पार्शियली बर्न कर सकता हूँ. तो अगर मैं इसको पार्शियली बर्न करूँ विथ हाफ ऑक्सीजन तो मुझे इंटरमीडिएट में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा. फिर और कार्बन मोनोऑक्साइड में बर्निंग करूँ, कंबशन करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. राइट. तो ये वाले स्टेप में इसका एंथैल्पी 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? 1 equal to 2 plus 3. And what was the reason for this relation? Enthalpy is the state function. Bas. Enthalpy is a state function. It depends only on the initial state carbon graphite and the final state CO2. अब इस पे आप एक स्टेप में पहुंचो, 2 स्टेप में पहुंचो, 10 स्टेप में पहुंचो, फर्क नहीं पड़ता है. The enthalpies will be equal in one step or in multiple step. तो multiple step में होगा तो it will be summation of the enthalpies and that will always remain constant. That's how we get the name Hess's law of constant heat summation. ठीक है. अब Hess's law का सबसे important part, application. So coming back to the reaction under formation. As I said, carbon and hydrogen add करने पर do we get benzene or do we get any hydrocarbon? मिलता है क्या? No. नहीं. मतलब ये जो रिएक्शन लिखा है that is not feasible, I can say it's a hypothetical reaction. लेकिन इसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी डिफाइन करने पर मुझे डेल्टा HF नॉट बेंजीन मिलेगा. बट ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है.
तो अगर इस रिएक्शन को मैं दूसरे कोई पाथ से कैरी आउट करूं और उनकी एंथैल्पीज पता है, तो कैन आई अप्लाई द हेसेस लॉ टू गेट दिस एंथैल्पी? Yes. तो हेसेस लॉ का एप्लीकेशन क्या है? इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल ना भी हो, फिजिबल रिएक्शन हो, उसका भी एंथैल्पी हेसेस लॉ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। इनफैक्ट यही एग्जांपल लेते हैं हम, ये हाइपोथेटिकल वाला रिएक्शन, मजा आएगा। एग्जांपल रादर, मुझे एंथैल्पी चाहिए इस रिएक्शन की, किसकी? कार्बन ग्रेफाइट 6 मोल्स प्लस हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स गिविंग यू 1 मोल ऑफ बेंजीन C6H6 लिक्विड। इसका डेल्टा एच एफ नॉट मुझे फाइंड आउट करना है, जो कि मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता क्योंकि ये रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसके सामने आपको कुछ और रिएक्शन गिवन है। पहला, ग्रेफाइट का कंबशन जो CO2 देता है, इज दिस रिएक्शन फीजिबल? हाँ कि नहीं? Yes. तो इसका डेल्टा H1 नॉट नोन है। दूसरा, हाइड्रोजन का बर्निंग जो पानी देता है वो भी रिएक्शन फीजिबल है, तो उसका भी डेल्टा H अपने को पता रहेगा, यानी डेटा एज गिवन रहेगा। ठीक है, और तीसरा, बेंजीन के कंबशन का भी तो फिजिबल रिएक्शन है। बेंजीन को जब बर्न करेंगे तो 6 CO2 और 3 H2O मिलेगा। ऑक्सीजन काउंट करो, 12 और 3 15, 15 का आधा करो तो 15/2। इसका भी एंथैल्पी मुझे पता रहेगा। मतलब if I know some known reactions का एंथैल्पी, I can use them to get the unknown reaction का एंथैल्पी। ठीक है, कैसे मिलेगा मुझे? अब इसमें ना एक सिंपल सा टेक्निक फॉलो करना है हेसेस लॉ के लिए। रिक्वायर्ड में क्या चाहिए और गिवन में वो कहां पर है। सुनो मेरी बात ध्यान से, रिक्वायर्ड में क्या चाहिए और गिवन में क्या है, उसको रिलेट करके आप मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाओ। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में यू वांट 6 मोल्स ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। हाउ कैन यू गेट इट थ्रू द गिवन? 1 multiplied by 6. फ्रॉम द इक्वेशन 1, बट उसमें प्रॉब्लम है कि एक ही मोल है, तो अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मेरा 1 रिएक्शन को 6 टाइम्स करना पड़ेगा। फिर 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, कहां से मिलेगा? 2 into 3. सेकेंड रिएक्शन से मल्टीप्लाइड बाय 3। और 1 मोल ऑफ बेंजीन चाहिए, कहां से मिलेगा? 3 into -1. 3 into -1, मतलब रिवर्सिंग द थर्ड रिएक्शन, -1 into 3, rather 3 into -1, है ना? समझा क्या किया मैंने? So now the summation of enthalpies for these steps will give me this particular reaction, क्योंकि जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 CO2 और ये 6 CO2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड रिएक्शन रिवर्स किया है। ये 3H2O और ये 3H2O कैंसिल हो जाएगा, और ऑक्सीजन में 6 और 3/2 9/2 मिलेगा, सॉरी 15/2 मिलेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपके पास बचा यही वाला रिएक्शन। समझा गया? Yes, sir. ठीक है, तो बाय अप्लाइंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन एज डिस्कस्ड यू कैन फाइंड द डेल्टा HF नॉट ऑफ बेंजीन। हो गया हेसेस लॉ का एप्लीकेशन, राइट? Yes, sir. मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है कि कोई भी रिक्वायर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी ढूंढना है फ्रॉम द गिवन, रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, गिवन में कैसे ला सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन बनाओ एंड दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, Yes. अब आप सुनो ध्यान से।
ये जो एंथैल्पी है डेल्टा H1 कैन आई से दिस इज डेल्टा H कंबशन ऑफ कार्बन? हाँ कि नहीं? Yes. सेकेंड कंबशन ऑफ हाइड्रोजन है और थर्ड कंबशन ऑफ बेंजीन है. डज एवरीवन अग्री टू दिस? Yes, sir. मतलब आई कैन से कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी ढूंढने के लिए व्हाट आई डिड इज I multiplied 6 times with the combustion of carbon, 3 times with the combustion enthalpy of hydrogen, and subtracted from the combustion enthalpy of benzene. यही किया ना मैंने? मतलब if I know the combustion enthalpies in the given reactions, then किसी भी reaction का enthalpy अगर ढूंढना है तो I can just apply the formula as combustion enthalpy of the reactants minus the combustion enthalpy of product. मतलब इतना जो दिमाग मैंने अभी लास्ट 3 मिनट में अप्लाई किया वो जस्ट 3 सेकंड में कंक्लूड हो गया. क्या कि if the combustion enthalpies are given in the data, given मतलब डेटा में दिया हुआ, तो किसी भी रिक्वायर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड करने के लिए जस्ट टेक कंबशन ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस कंबशन ऑफ द प्रोडक्ट. आप देखो, समझा क्या बोला मैंने? Yes, sir. So now coming back to combustion वाला part. If I want to find the delta H naught of any damn reaction, कोई भी reaction का enthalpy ढूंढने के लिए अगर डेटा में combustion enthalpy है, then the formula is summation combustion enthalpies of all the reactants minus summation combustion enthalpy of all the products. देखो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया. समझा? So, सिमिलरली अगर फॉर्मेशन एंथैल्पीज डेटा में दिया है, डेटा में गिवन है, और किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी अगर ढूंढना है ना, तो अगेन हैसेस लॉ के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो. एंड देन हियर यू गेट द फॉर्मूला एज फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स. यहां पर क्या करना है आपको? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स करना है. वो भी आप हैसेस लॉ के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हो जैसे मैंने कंबशन में किया. ये देखो फॉर्मूला क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है. सिमिलरली बॉन्ड एंथैल्पीज अगर किसी क्वेश्चन में दिया है, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी के थ्रू ढूंढने के लिए करना क्या है? टेक द सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. मतलब 3 स्टैंडर्ड एंथैल्पीज के 3 फॉर्मूलाज आपके सामने. और समराइज करने के लिए इसको और एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं. फॉर्मेशन में सिर्फ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स है, दिख रहा है क्या? बाकी दोनों में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स है. ओनली फॉर्मेशन में प्रोडक्ट पहले रिएक्टेंट बाद में, बाकी सब में रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बाद में. समझा? Yes, sir. तो ये 3 फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली शॉर्टकट वे में. ठीक है? अब डेटा में अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पीज नहीं है ना, तो अपना ट्रेडिशनल मेथड हैसेस लॉ का यूज करना है, जो ये सामने है. 1 2 3 रिएक्शंस दिया है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 को रिवर्स करो, जो करना है करो, अल्टीमेटली गिवन के थ्रू रिक्वायर्ड आना चाहिए. समझा? ऐसे ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए भी करते थे ना. किसी एक रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम ढूंढना है और मल्टीपल K1 K2 K3 दिया है, तो हम तोड़ मरोड़ के उसको लेकर आते थे ना, K1 K2 स्क्वायर अपॉन K3 क्यूब, ऐसा कुछ. अरे हाँ तो बोलो इतना बोलने के बाद. yes, sir. तो वैसा ही कुछ है ये. तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूल्स थे कि रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट होता है, मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर्ड होता है, डिवाइड करने पर रूट से रेज होता है 1/2 1/3.
और ऐड करने पर मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही रूल्स है ना? Yes, sir. Yes. हाँ, लास्ट, effect of temperature on heat of reaction, that's called Kirchhoff's equation. ये केमिस्ट्री का किरचॉफ है, KVL KCL नहीं है. So here the Kirchhoff's law describes the variation of enthalpy with the change of temperature. Variation of enthalpy with the change of temperature at constant pressure or constant volume. If the heat capacities do not vary with temperature, then the change in enthalpy is a function of difference in temperature and heat capacities. मतलब dq by dt जो है that is equal to c minus c dash, हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस के बराबर होता है. अब अगर ये हीट को मैं कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन करूं तो व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड? delta H. Always remember the moment I say heat at constant pressure, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए डेल्टा H. And this was in turn related with Cp as n Cp delta T. हाँ कि नहीं? Yes. और सिमिलरली QV जो है वो डेल्टा U के बराबर होता है और वो NCV डेल्टा T के बराबर था. ठीक है? तो now if the heat capacities of the reactants and products for a chemical reaction is given, then the Kirchhoff's equation is given as delta H2 minus delta H1 equals to delta Cp into T2 minus T1, where delta H2 is the enthalpy at higher temperature T2, delta H1 is at temperature T1 lower, and delta Cp क्या होता है? Cp of the products minus Cp of the reactants. ये हीट कैपेसिटीज टेम्परेचर से चेंज नहीं होगी. ठीक है, बट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स का तो अलग अलग होगा ना, सब्सटेंस अलग है तो. या फिर आप डेल्टा यू को भी ऐसे ही ढूंढ सकते हो, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1, बस इसमें फर्क आएगा, डेल्टा सी वी आ जाएगा ना. But again, this is the CV of the products minus CV of the reactants. बस. अगर कोई क्वेश्चन में अलग टेम्परेचर्स पे हीट कैपेसिटीज या इंटरनल एनर्जीज आपको ढूंढनी है, जस्ट थिंक ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन. दैट्स इट. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. तो अब एमसीक्यू में ना सेक्शन H, हाँ, सेक्शन GHIJK, GHIJK मैं बार बार बोलता हूँ सॉल्व करो, बट आई एम डाउटफुल वेदर यू आर सॉल्विंग और नॉट. इट्स माय जॉब टू से दैट, इट्स योर जॉब टू डू इट. ठीक है, प्लीज उसको सॉल्व करो. एंड दे आर लिमिटेड एमसीक्यूज, ऐसा नहीं भर भर के एमसीक्यूज मैंने दिए है. सेक्शन वाइज 7 8 10 ऐसा कुछ एमसीक्यू है, किसी किसी में 2 भी है. तो सेक्शन जी, किरचॉफ्स लॉ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन एंड सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन, ये सब एंथैल्पीज मैंने कल बताया है. बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न एंथैल्पी, रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है, ये 5 टॉपिक्स हैं. ठीक है, ई और एफ अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, इसमें से थोड़े बहुत चीजें मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, एंड विद दैट द थिंग विल गेट ओवर. But major part of the chapter has got over. Only the last part about spontaneity and feasibility remains of the chapter. So physical chemistry में chapters lengthy नहीं है, खाली आपको numericals का approach कैसे करना है, what is the thought process, that becomes very important. Right? Yes, sir. Yes. Chalo, I am done.